ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون صدق الله مولانا العظيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا خلیفہ بننے کے بعد۔ اس خطبے میں چند ایک باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی۔ دل چاہا کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو پڑھ کر اور اس کو سن کر ہم بھی ان کی باتوں کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بھی آسان فرما دے اور کل قیامت کے دن حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد
پہلی بات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں حلم اور حوصلہ مندی یہ انسان کو خوبصورت بناتی ہے۔ حلم اور حوصلہ مندی انسان کو خوبصورت بناتی ہے، زینت بخشتی ہے۔ اس کی وضاحت میں تھوڑی سی آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کی جو اصل خوبصورتی ہے وہ انسان کے ظاہری لباس میں یا مال میں، ظاہری شکل و صورت میں نہیں ہے۔ انسان کی جو اصل خوبصورتی ہے وہ انسان کے اخلاق میں ہوتی ہے۔ ایک انسان بڑا صاف ستھرا رہتا ہے، اس کے کپڑے بھی صاف ہیں، اس کا وجود بھی صاف ہے، شکل و صورت بھی صاف ہے، خوبصورت ہے، مال و دولت بھی اس کے پاس ہے، لیکن اس بندے کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کا گفتگو کا انداز اچھا نہیں ہے، انتہائی اکڑ پن سے بات کرتا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑے بھی اتر آتا ہے، اگلے بندے کی عزت اور احترام نہیں کرتا، تو یہ بندہ حلم والا نہیں، حوصلے والا نہیں ہے۔ حلم والا بندہ وہی ہے جو اخلاق کے حوالے سے بہترین ہے۔ جب ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں ہمیں بہت ساری جگہ پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو جگہ جگہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو۔ اسی طرح وقولوا للناس حسنا، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے گفتگو کرو۔ اچھا انداز اخلاق والا ہی ہوتا ہے کہ اگلے بندے کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے، یا اگر اور اس کو آسان کریں تو اگلے بندے کو اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھتے ہوئے اس سے گفتگو کرے، یہ سمجھتے ہوئے گفتگو کرے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے۔ جب یہ سمجھ کے گفتگو کرے گا تو پھر گفتگو کرنے کا انداز اچھا ہوگا، بھلا ہوگا۔ اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، یہ بھی قرآن پاک میں قصہ موجود ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں فرعون کی یہ بات موجود ہے کہ فرعون نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا دنیا میں بہت بڑا باغی تھا، اتنا بڑا باغی تھا کہ اس کی لاش کو زمین نے برداشت ہی نہیں کیا۔ آج بھی مصر کے عجائب گھر میں فرعون کی لاش ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی، بطور عبرت کے کہ لوگ اس کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں کہ یہ وہ بندہ تھا جس نے اپنی حکومت بچانے کے ڈر سے 70,000 بچوں کو قتل کیا، جس نے انا ربکم الاعلی کا اعلان کیا تھا کہ میں بڑا رب ہوں۔ کتنا بڑا باغی آدمی تھا، لیکن اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسی کے لہجے میں بات کی جاتی،
جیسے فرعون بات کرتا تھا اس کے لہجے میں بات کی جاتی، اسی کے انداز کے ساتھ بات کی جاتی، لیکن خالق کائنات میں موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا فرعون کے پاس تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ قولا لینا لعلہ یتذکر، کہ فرعون کے ساتھ ذرا اچھے طریقے سے گفتگو کرنا، نرم لہجے سے گفتگو کرنا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کس بندے کے بارے میں؟ جس بندے نے اللہ کے ساتھ بغاوت کر رکھی ہے، دنیا میں اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو اس کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس بات کو سامنے رکھ کر ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہمارے اخلاق کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے، ہمارے دوسرے بندے کے ساتھ معاملات کیا ہیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ حلم اور حوصلہ مندی جو ہے وہ انسان کو خوبصورت بناتی ہے۔ میں نے اس پر کہا کہ انسان کی جو اصل خوبصورتی ہے وہ اس کے ظاہری لباس میں نہیں ہے، اس کی ظاہری شکل و صورت میں نہیں ہے، انسان کی جو اصل خوبصورتی ہے وہ اس کے اخلاق کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو خالق کائنات نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جس کو قرآن عظیم کہے وہ کیسی عظمت والی چیز اور بات ہو۔ اللہ نے میرے نبی کو ایسے اخلاق عطا فرمائے۔ میرے نبی کی زندگی کا ایک مشکل ترین مرحلہ طائف کا سفر آج بھی اسلام کے ہسٹری کے اندر روز روشن کی طرح موجود ہے کہ میرے نبی کو اتنا ستایا گیا، لہو لہان کر دیا گیا، اس کے باوجود بھی میرے آپ کے نبی نے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کیا ہے کہ یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتے نہیں۔ ایسے اخلاق اللہ کرے ہمیں بھی حاصل ہو جائیں۔ اپنے نبی کے اخلاق، حضرات صحابہ کرام کے اخلاق، حسنین کریمین کے اخلاق اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، تاکہ کل قیامت کے دن ہمارا حشر ان پاک اور مبارک ہستیوں میں ہو جائے۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ فرمایا حلم اور حوصلہ مندی یہ انسان کو خوبصورت بناتی ہے۔ میں نے کہا خوبصورتی انسان کی اس کے اچھے اخلاق کے اندر ہے، یعنی ہر معاملے میں انسان اپنے جذبات کو قابو میں رکھے۔ یہ اور آسان ہو گئی بات۔ ہر معاملے میں انسان اپنے جذبات کو کیا کرے بھائی؟ قابو میں رکھے۔ ایسے خام خواہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر دینا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ فرمایا کہ حوصلہ مندی مطلب یہ ہے کہ صبر، ثابت قدمی، یہ حوصلہ مندی کے اندر آتا ہے۔ آسان سے انداز میں اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ مشکلات میں، آزمائشوں میں کبھی بھی نہ گھبرائے۔ مشکلات میں اور آزمائشوں میں کبھی بھی نہ گھبرائے۔ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے نانا کی صحبت میں رہ کر انہوں نے یہی کچھ سیکھا تھا کہ آزمائشوں پہ، مشکلات میں کیسے صبر کیا جاتا ہے۔ میدان کربلا میں اپنے کنبے کے ساتھ شہید ہو گئے، لیکن بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہر مشکل کو صبر کے ساتھ برداشت کیا ہے۔ اور قرآن پاک نے، اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تمہیں کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، مدد چاہتے ہو تو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ
अपने अल्लाह से मदद मांगो। यानी जो बंदा सब्र करता है और जो बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, नमाज पढ़ता है आकर, अल्लाह ताला इस बंदे की मुश्किलों में आसानी फरमा देते हैं। अल्लाह इसको साबित कदमी नसीब फरमा देते हैं। अल्लाह हमें नसीब फरमा दे। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली बात ये इरशाद फरमाई कि हिलम और बुर्दबारी इंसान को क्या करती है भाई, खूबसूरत बनाती है। इसका खुलासा ये है कि इंसान हर मामले में हर लम्हा अखलाकियात का अच्छा मुजाहरा करता रहे तो कभी भी जिंदगी में नाकाम नहीं होगा। अल्लाह इसको कामयाब फरमा देंगे। आगे चलता हूं। हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक और बात इरशाद फरमाई। फरमाते हैं वक़ार, वक़ार अखलाके हसना में से है। वक़ार अखलाके हसना में से है। इसको मैं जब खोलता हूं तो हमें यह चीज पता चलती है कि ऐसा तर्ज जिंदगी अपनाया जाए जिसमें कभी भी तकब्बुर ना हो, हर मामले में संजीदगी और एतदाल इख्तियार करना चाहिए। आपको बात समझ आ गई? वक़ार किसे कहा जाता है? फरमाया कि वक़ार अखलाके हसना में से है। मतलब इसका यह है कि ऐसा तर्ज जिंदगी इंसान को अपनाना चाहिए जिसमें कभी भी तकब्बुर, आप जानते हैं तकब्बुर कितनी बड़ी चीज है, कितनी खतरनाक चीज है। अच्छा, एक मैं आपसे बात करता हूं, एक सवाल है। इंसान जब इब्तिदा को देखता है, अपनी तखलीक को देखे, और आज अल्लाह ने उस कमजोरी से इंसान को ताकतवर बनाया, इस ताकतवर मरहले में इंसान अगर अपनी इब्तिदाई तखलीक को देखता रहे तो कभी भी तकब्बुर, बोलो भाई, कभी भी तकब्बुर ना करे। लेकिन इंसान भूल जाता है, अपनी इब्तिदाई तखलीक को भूल जाता है। इंसान जब ताकतवर होता है तो फिर इंसान कहता है कि मेरे मुकाबले का कोई भी नहीं। ऐसा है कि नहीं? कुरान कहते हैं वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, जमीन पे अकड़ के, बोलो बोलो, जमीन पे अकड़ के, इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ वलन तबलुगल जिबाल तूला, वो अकड़ के चलोगे ना तुम जमीन को फाड़ सकते हो, ना तुम आसमान का पहाड़ों की बुलंदियों तक पहुंच सकते हो। यही है ना? और आप जानते हैं कि जो बंदा तकब्बुर करता है वो अल्लाह की किबरियाई वाली चादर को पकड़ता है। अल्लाह की जात कहता है तकब्बुर, मेरे रब को जो चीज जेब देती है किबरियाई वाली। अल्लाह ने वो कुरान पाक में सूरह हशर में अपने अस्मा का जिक्र किया है कि वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मालिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन अल मुहैमिनुल अजीज अल जब्बारुल मुतकब्बिर। अल जब्बार के बाद अल मुतकब्बिर, बड़ी जात, किबरियाई वाली जात, जो दुनिया में तकब्बुर करेगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इस इंसान को चींटी जैसा जिस्म अता करेंगे। पूरी इंसानियत इस बंदे को अपने पांव के नीचे रोल डालेगी। मैंने अर्ज किया हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खुतबे में यह बात इरशाद फरमाई है कि वक़ार इस इंसान के लिए अखलाके हसना की हैसियत रखता है। वक़ार इस चीज का नाम है कि बंदा कभी भी तर्ज़े जिंदगी में तकब्बुर से काम ना ले, हर मामले में संजीदगी इख्तियार करे और इसी तरह हर मामले में एतदाल इख्तियार करेगा तो अल्लाह ताला इसको दुनिया की मुश्किलात में भी आसानी अता फरमाएंगे और कल क़यामत के दिन अल्लाह क़यामत की सख्तियों से भी इस बंदे को महफूज फरमा देंगे। आगे चलते हैं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
तीसरी बात ये इरशाद फरमाई कि जल्दबाजी से इंसान को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। ये तो आसान सा जुमला है। जल्दबाजी से इंसान को क्या है शर्मिंदगी उठानी पड़ती। यानी मैं इसको और आसान करूं तो फरमाया कि जो शख्स बगैर सोचे समझे, जल्दबाजी ये है, बगैर सोचे समझे अपनी जिंदगी के फैसले करता या बगैर सोचे समझे कोई ना कोई अमल कर देता है, तो उस आदमी को चंद दिनों के बाद, थोड़े वक्त गुजरने के बाद शर्मिंदगी, नुकसान और नदामत का सामना करना पड़ता है। क्यों जी, ऐसा है कि नहीं? एक चीज है इंसान के लिए शरीयत ने मुकर्रर की कि बंदा जो है अपने मामले में मशवरा कर ले। क्या है? क्या कर ले? मशवरा कर ले। एक है ये जमात वाले बैठ के मशवरा करते, गश्त किसने, क्या कहते, आदाब गश्त किसने बयान करने, बाहर रहबर कौन होगा, मुतकल्लिम कौन होगा, शाम का बयान कौन करेगा, ईशा की तालीम कौन करेगा, खिदमत कौन करेगा। ये 10-12 लोगों की जमात घेरा लगाकर बैठ जाते हैं और सारे के सारे आपस में क्या करते हैं? आपने देखा होगा, चलो अगर नहीं देखा तो घर का जो बड़ा होता है, सरबरा, घर का कोई बड़ा होता है, खानदान में कोई बात करनी है, कोई मामला करना है, शादी ब्याह करनी है अपने बच्चों बच्चियों की, तो घर का जो बड़ा होता है अपने खानदान वालों को क्या करते भाई? बुला लेते हैं, अपने बहन भाइयों को बुला लेते हैं, अजीज रिश्तेदारों को बुला लेते हैं। अगर कोई बंदा कारोबार करना चाहता है, उसके कोई बाएतमाद किस्म के दोस्त हैं। आजकल तो कहते भाइयों से भी बंदे को इतमाद नहीं रहा, हम क़यामत के करीब होते जा रहे हैं। आजकल कहते हैं कि रिश्ते भी सफेद हो गए, और खूनी रिश्ते भी, खून भी क्या कहते हैं, सफेद हो गया। आजकल खूनी रिश्ते के अंदर भी बेवफाइयां नजर आने लग गई। यही वजह है कि दुनिया की रंगीनियों में मसरूफ होकर, मशगूल होकर आज रिश्तेदारी का तसव्वुर भी खत्म होता जा रहा है। दोस्त तो दूर रहा। यह भी क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है कि वालिदैन की बात पर दोस्त की बात को तरजीह देना, बाप की बात को नहीं मानना, दोस्त की बात को मानना है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। मैं कर रहा हूं, रिश्तेदारी का मामला है तो बहन भाइयों को क्या कर लिया? इकट्ठा। कारोबार करना चाहता है तो अपने बातमाद दोस्तों को क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया, और कहते हैं भाई मैं मशवरा करता हूं। साढ़े कोल भी लोग आ जाते, वो कहते जिन्हों कोई नहीं चलता उन्होंने मसीत का मौलवी चल लेंदा। हाँ, ऐसे है, जिसको कोई नहीं ना बाहर पूछता, वो आ जाके मस्जिद के इमाम साहब के पास पहुंच जाता है और कहता है मौलवी साहब मेरा ये दुखड़ा सुन लो। वो सुनाता है, हम सुन लेते हैं, उसका बोझ हल्का हो जाता है, हम दुआ के लिए हाथ उठा देते, अल्लाह तेरी मुश्किलें आसान कर दे। और साढ़े को की लबना है, जिसको बाहर कोई नहीं झीलता, वो आ जाते हैं मस्जिद के इमाम साहब के पास। कि आपने नमाजें भी पढ़ानी है, आपने दरस भी देना है, आपने लोगों को दीनदारी भी सिखानी है, आपने जुमे भी पढ़ाने हैं, आपने बच्चों को भी पढ़ाना है। साथ साथ अगर आपके पास कोई मेरा मजबूर बंदा आ जाता है, तुमने उसकी सुननी भी है और उसके साथ खैर खाई भी करनी। अल्हम्दुलिल्लाह है, बहुत कम लोग आपको माशरे में मिलेंगे जो किसी दूसरे का बोझ अपने सर ले लेते हैं। ये मेरे नबी की एक बहुत बड़ी सिफ्त थी, ये मेरे नबी की खसूसियत थी कि दूसरों का बोझ भी अपने ऊपर उठा लिया करते थे। जब पहली वही नाज़िल हुई थी, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ लाए थे, सहमे हुए थे, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी इरशाद फरमा रहे हैं
हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पहली ज़ौजा मुतहरा, उन्होंने जहां प्यारे नबी की सिफात और खुसूसियात को बयान किया था, वहां एक बात यह भी उन्होंने इरशाद फरमाई थी, या रसूल अल्लाह, आप तो दूसरों का बोझ भी अपने सर ले लेते हैं, अपने ऊपर उठा लेते हैं, अल्लाह की कसम अल्लाह कभी भी आपको जाया नहीं करेंगे। दूसरों की खैर खाई किया करें, दूसरों की खैर खाई करना ये भी क्या कहते हैं, ईमान की अलामत है। अल्लाह ताला हमें नसीब फरमा दे। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, मशवरा, अल्लाह पाक ने मशवरे के अंदर खैर रखी है, बात समझ रहे, बरकत रखी है। फिर जब मशवरा हो जाए, यहां एक ये बात भी अर्ज करता चलूं, मशवरा देना चाहिए, हुक्म नहीं। इस नीयत से मशवरा देना कि मेरा ही मशवरा माना जाए, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है नहीं। अपने बड़े को मशवरा दे दे कि जी मेरी राय और मशवरा ये है, आगे जैसे आप मुनासिब समझते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है, और इसमें अल्लाह पाक ने खैर रखी हुई है। मेरे नबी ने ओहद, जब जंगे ओहद लड़नी थी, मेरे नबी ने सहाबा से मशवरा किया। क्या किया भाई, बोलो क्या किया, मशवरा किया कि भाई जंग जो है मदीना के अंदर रह कर लड़ी जाए या मदीना से बाहर निकल कर लड़ी जाए, ये सवाल था। मेरे नबी ने मशवरा मांगा। मेरे नबी की अपनी राय ये थी कि जंगे ओहद जो है ये जंगे ओहद ये मदीना के अंदर रह कर लड़ी जाए, अपना दिफा किया जाए। अबू बकर सिद्दीक की राय भी यही थी। लेकिन वो सहाबा किराम जो बदर में शरीक नहीं हो सके थे, जिनका यूं समझे कि ताजा खून था, उसमें नए मुसलमान भी होंगे, उनके अंदर जुर्रत थी, जज्बा था, फिर नबी को मशवरा दे दिया, नहीं मदीना से बाहर निकल कर लड़नी चाहिए। जब कसरत राय हुई, नबी ने कबूल फरमा लिया। अब मेरे नबी घर तशरीफ ले गए तैयारी करने के लिए। पीछे सहाबा किराम ने आपस में फिर मशवरा किया कि यार हमारे नबी की राय ये थी कि मदीना के अंदर रहकर जंग लड़ी जाए, हमने अपने नबी को मजबूर कर दिया कि मदीना से बाहर निकल के जंग लड़नी है। ऐसा नहीं, हम ऐसा करते हैं, हुजूर जब बाहर तशरीफ लाएंगे हम कहते हैं कि या सुल्ला मदीना के अंदर, यानी ये मशवरे पे मशवरा हुआ। मेरे नबी जब ज़िरा पहनकर, जंगी लिबास पहनकर घर से बाहर तशरीफ लाए। अब जब सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह मदीना के अंदर, हुजूर ने फरमाया कि नहीं, अब नहीं, अब नहीं, किसी नबी के लिए जायज नहीं है, किसी नबी के लिए जायज नहीं है कि जंगी हथियार पहनकर दोबारा उतार दे। अब जंग मदीना के अंदर नहीं, मदीना से बाहर ही लड़ी जाएगी। फिर वहां पहुंचे, जंग हुई, अव्वल फतह हुई, फिर जनाब अफरा तफरी फैली, फिर मुसलमानों का नुकसान हुआ, 70 सहाबा किराम शहीद हुए, और हुजूर के प्यारे चचा हमजा भी शहीद हुए, और भी बहुत सारे सहाबा किराम शहीद हुए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी हुए। फिर अल्लाह की मदद के साथ, अल्लाह की नुसरत के साथ दोबारा मुसलमान जमा हुए, इकट्ठे हुए, अल्लाह पाक ने मुसलमानों को फतह अता फरमा दी। ये मैंने बात इसलिए की है कि मशवरा जो है ना, मशवरा वो मशवरा की नीयत से देना चाहिए। इस नीयत से नहीं देना चाहिए कि मैं मशवरा दूं और माना भी जाए, ये फिर मशवरा नहीं होगा, ये हुक्म होगा। आपको बात समझ आ गई? मैं अर्ज कर रहा हूं कि हौसला और जल्दबाजी, हज़रत हसन के खिताब के चंद एक इक्तिबासात आपकी गोशगुजार कर रहा हूं। वो क्या फरमाते हैं कि जल्दबाजी से इंसान को शर्मिंदगी होती है, यानी अपना हर फैसला, हर अमल जो बंदा जल्दबाजी में कर देता है, किसी से मशवरा नहीं करता, उस बंदे को नुकसान और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें भी यह सबक मिलता है, अपने हर मामले में अपने किसी बड़े से मशवरा कर लेना चाहिए। इसके अंदर अल्लाह पाक ने खैर रखी हुई।
करेंगे इंशाल्लाह। क्यों जी, मशवरा करना चाहिए ना, हाँ कर लेना चाहिए। आगे चलता हूं, हदीस मुबारक में भी आता है कि समझ के साथ, सोच विचार के साथ काम करना ये अल्लाह ताला की तरफ से है, और जल्दबाजी जो है वो शैतान की तरफ से। बड़े साफ साफ अल्फाज हदीस मुबारक के, सादा सा मफहूम है कि समझदारी के साथ, सोच के साथ, ठहराव के साथ इंसान जो काम करता है ये अल्लाह ताला की तरफ से है। जब ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है फिर अल्लाह उस ठहराव और सोच के साथ किए हुए काम में इस बंदे के लिए बरकत और रहमत के भी फैसले फरमा देते। और वल उजलत मिन शैतान, फरमाया कि उजलत, जल्दबाजी, ये शैतान की तरफ से है। और शैतान तो आपको पता है कि हमारे ऊपर सर चढ़ा हुआ है, सवार है, हमारे जिस्म के अंदर ऐसे दौड़ता है जैसे शैतान, जैसे जनाब खून इंसान की रगों के अंदर गर्दिश करता है। इसलिए कोशिश की जाए अपने हर मामले में किसी बड़े के साथ क्या कर लेना चाहिए भाई, मशवरा कर लेना चाहिए, जल्दबाजी से अपने आप को जो है वो बचा लेना चाहिए। आगे चलता हूं, उन्होंने अपने खुतबे में एक और बात इरशाद फरमाई। मैं चंद एक इक्तिबासात छोड़कर मैं इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा हूं। एक बात इरशाद फरमाते हैं, हाय हाय कमीनों की सोबत, कमीने लोगों की सोहबत ये इंसान के लिए ऐब की चीज है, और फासिकों के साथ मिल बैठना ये इंसान की ये तोहमत का बायस है। बात समझ रहे हैं? कमीनों की सोहबत मतलब क्या है? अच्छी सोहबत इंसान इख्तियार करेगा तो रंग कैसा चढ़ेगा? बोलो बोलो, अच्छा रंग। और अगर किसी गलत इंसान की सोहबत में बैठेगा तो साफ सी बात है, गुनाहगारों के पास बैठेगा तो वही रंग चढ़ेगा, अच्छे लोगों के पास बैठेगा तो अच्छाई का जज्बा पैदा होगा। मेरे अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा व नहनु लहु आबिदून। अल्लाह का रंग कहां बैठ के चढ़ता है भाई? अल्लाह वालों की सोबत में है। अल्लाह का रंग कहां चढ़ता है? अल्लाह वालों की सोबत में बैठकर, उलमा की सोबत में बैठकर, अल्लाह के घरों में बैठकर, दीनी मजालिस में बैठकर, दीनी महाफिल में बैठकर, अल्लाह के रास्ते में निकलकर यह सिबगत अल्लाह का मिस्ताक बन जाता है। और अल्लाह का कुरान कहता है वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। याद रखना, अल्लाह के रंग से खूबसूरत किसी का रंग, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। और कौन है जिसका रंग अल्लाह के रंग से ज्यादा खूबसूरत हो? कोई भी नहीं, क्योंकि सारे रंगों की पैदा करने वाली जात उसी ने दुनिया में रंगीन और दिलकश नजारे बनाए, उसी ने कायनात में हुस्न के जलवे उतारे, उसी जात ने हर इंसान को उसकी हैसियत के मुताबिक खूबसूरत बनाया। जिस जात ने इस दुनिया में इतना हुस्न उतारा है उस जात का अपना हुस्न कैसा होगा, उसका अपना रंग कैसा होगा। मैं कहता हूं जैसे मेरे रब की शान है ऐसे ही मेरे रब का हुस्न होगा। हाय हाय, हुस्ने यूसुफ को देख कर कटी थी वहां उंगलियां। कुरान का किस्सा है ना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों ने फलों की बजाय अपनी उंगलियां क्यों काटी? हुस्न देखा था। क्यों काटी थी? हुस्न देखा था। मेरे रब ने यूसुफ को हुस्न ही ऐसा अता किया था, हुस्न देखा था, हुस्न में इतनी जनाब मस्त हो गई, इतनी जनाब वो अपने आप को भूल गई कि फलों की बजाय अपने हाथों को काट लिया।
वक़त्तअना अयदियहुन वक़त्तअना अयदियहुन कुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा। ये कुरान के अल्फाज हैं। कहने लगी कि ये कोई बशर नहीं है, ये तो कोई अल्लाह का फरिश्ता है। मैं हुस्न की बात कर रहा हूं। एक वो हुस्न था जिस हुस्न को मिस्र की औरतों ने देखा, अपने हाथों पे चुड़ियां तोड़ाई, और हजारों साल बाद एक वो हस्ती दुनिया में तशरीफ लाई कि हुस्न यूसुफ को देखकर कटी थी वहां उंगलियां, यहां खुद चांद कट गया एक उंगली के इशारे से। इस हुस्न के क्या कहने, इस हुस्न को भी तो देखो। अम्मा आयशा फरमाती है कि हुस्न यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतों ने तो अपने हाथों की उंगलियां काटी थी, अगर मेरे नबी का चेहरा देख लेती तो दिलों पे छुरियां चला लेती। अल्लाह ने ऐसा हुस्न अता किया था। सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा व नहनु लहु आबिदून। अल्लाह का रंग चढ़ाए अपने ऊपर, और अल्लाह के रंग से ज्यादा खूबसूरत किसी का रंग, अल्लाह का रंग मिलेगा अल्लाह के घर में बैठ के, अल्लाह का रंग मिलेगा उलमा की सोबत में बैठ के, अल्लाह का रंग चढ़ेगा दीनी मजालिस में बैठकर, अल्लाह का रंग चढ़ेगा अल्लाह के रास्ते में निकलकर। तो मैंने कहा कमीनों की सोबत इंसान के लिए क्या बन जाती है, ऐब बन जाती है। अच्छों की सोबत काबिले तारीफ बन जाती है। और फरमाया थे हसन ने कि फासिकों के पास बैठना इंसान के लिए बाइसे तोहमत है। गुनाहगार आदमी एक बहुत बड़ा मुआशरे में उसकी क्या कहते हैं कि बुराइयां मशहूर हैं। एक नेक आदमी, नेक नामी रखने वाला है, नमाजी परहेजी, अगर उसके साथ जाके बैठना शुरू करेगा तो देखने वाले क्या कहेंगे, तोहमत लगेगी ना इस पर भी कि जिद्दां दी सोबत च बैठा उदां दा रंग चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। हमारे उस्ताद कहा करते थे इंसान को मौजे तोहमत से भी बचना चाहिए। मौजे तोहमत किसे कहते हैं, ऐसी जगह पे बैठना, ऐसी जगह पे खड़े होना कि इंसान देखने वाला कहे उस जगह को भी देखकर कि हाँ हाँ भाई इस बंदे के अंदर कोई ऐब पाया जाता है, उसकी नेक नामी और पाक दामनी पे धब्बा लगे। ऐसी जगह पे भी इंसान को खड़े नहीं होना चाहिए। ये आले रसूल के खिताब की बात कर रहा हूं, ये नबी के नवासे के खिताब की बात कर रहा हूं। अल्लाह ने नबी के नवासों को वही खुसूसियात अता की थी जो अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा रखी थी। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे हैं, एक बाग के पास से गुजर हुआ। पहले वक्तों में होता था शहरों की भी फसीलें होती थी, दीवारें बड़ी बड़ी और जनाब दरवाजे होते थे, और ऐसे ही जहां बागात होते थे तो बाग वाला जो मालिक होता था उसकी भी चार दीवारी कर लिया करता था। तो ये बाग ऐसा ही था। हज़रत अब्बान इब्ने उस्मान ये रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये ताबी हैं, इन्होंने हुजूर का जमाना नहीं पाया, बाद में पैदा हुए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं। ये बाग उनका था खजूरों का, और इसकी चार दीवारी थी। उसके अंदर एक गुलाम बैठा हुआ था हबशी काले रंग का। मैंने ये किस्सा इसलिए आपकी गोश गुजार करना चाहा कि अल्लाह ने मेरे नबी को बहुत बड़ा सखी बनाया था। मेरे नबी सखी थे, जूदो सखा के आला मर्तबे पे फाइज थे। अल्लाह ने जो खसूसियात मेरे नबी को दी उसी किस्म की खसूसियात अल्लाह ने हसनैन करीमैन को भी अता फरमाई। देखा गुलाम बैठा हुआ है, उसके हाथ में एक रोटी है, और वो जरा मेरी तरफ देखें, एक लुकमा तोड़ते अपने मुंह में लेता, और उसके सामने कुत्ता बैठा हुआ है और एक लुकमा तोड़ते कुत्ते के मुंह में डाल देता है। हज़रत हसन खड़े होकर देखने लग गए, तो एक रोटी उसने इस तरह बराबर तकसीम की, आधी खुद खाई और आधी उस कुत्ते को खिला दी। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस गुलाम के पास आते हैं, उस गुलाम से कहा कि जनाब ये तूने क्या किया। एक आधा लुकमा उसको दे देता, बाकी खुद खा लेता।
तुमने ज्यादा क्यों नहीं खाई? वो गुलाम कहता है, आखिर वो भी सहाबा की सोबत याफ्ता था, वो भी सहाबा की सोबत याफ्ता था, उसने भी नबी का जमाना करीब से उसने देखा था। वो कहते हैं मेरी आंखों में मैं जब इस कुत्ते की आंखों में देखता हूं, जाहिर बात है आदमी कुछ खा रहा हो, सामने कुत्ता बैठा हो तो कुत्ता देखेगा ना आपकी तरफ, बोलो भाइयों, देखेगा ना, और कुत्ता यही सोचेगा कि मैनू भी कोई को टुकड़ा दे दे। ये गुलाम कहते हैं मेरी आंखें इस कुत्ते की आंखें देखकर शर्म महसूस करती है कि मैं ज्यादा खाऊं और ये कम खाए, मैं ज्यादा खाऊं ये कम खाए, मुझे शर्म महसूस होती है। और हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस गुलाम की ये बात सुनकर बड़े मुतासर हुए। यार ऐसा कफैत शार, ऐसा मोतदिल मिजाज, उसे कहा कि यहां ठहरो मैं अभी आया, उसको बिठा दिया, बाग के अंदर तशरीफ ले गए और बाग के मालिक हज़रत अब्बान से मिले और उन्हें उस बाग का और उस गुलाम का मुंह मांगा मुआवजा अदा किया, बाग भी खरीदा और गुलाम भी खरीदा, खरीद कर वापस तशरीफ लाए। कौन किसने खरीदा बाग? नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाग भी खरीदा और उस गुलाम को भी खरीदा। वापस आए और उस गुलाम से कहा मैंने तेरे आका से बाग भी खरीद लिया है और मैंने तुझे भी खरीद लिया। जब ये बात कही तो गुलाम कहता है हजरत बहुत शुक्रिया अदा की, और कहता है आज के बाद मैं अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा के बाद आपके अहकामात की पैरवी करूंगा। यही होता है ना, गुलामी की जिंदगी ये थी, मैं अल्लाह की भी इबादत करूंगा, अल्लाह के नबी की भी इत्तिबा करूंगा और साथ साथ अपने मालिक के अहकामात की पैरवी भी करूंगा। जब गुलाम ने ये कहा कि मैं आपकी भी पैरवी करूंगा, आपके अहकामात को मानूंगा, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनके अंदर अपने नाना की सिफात कूट कूट के भरी हुई थी, जब गुलाम की जबान से ये जुमला सुना, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा ओ अल्लाह के पैदा करदा गुलाम, जाओ मैंने तुझे आजाद किया, जाओ मैंने तुझे आजाद किया और ये जो बाग मैंने खरीदे है, जाओ मैंने ये गुलाम तुम्हें, ये बाग भी तुम्हें हदिया के तौर पे अता कर दिया। इसे सखावत कही जाती है, सखावत कहा जाता है। मैंने कहा नबी के नवासों में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली सिफात मौजूद थी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं एक मर्तबा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता हूँ, देखता ये हूँ मेरे नबी ने दोनों हाथ दोनों घुटने नीचे रखे हुए। तवज्जो है, बोलो तवज्जो है, दोनों हाथ दोनों घुटने नीचे रखे हो तो बंदा क्या बनता है? सवारी, ऐसे है ना, सवारी बन जाता है। दोनों हाथ बंदा जमीन पे रखे, दोनों घुटने भी जमीन पे हो तो बंदा सवारी बन जाता है। हज़रत जाबिर कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में देखा, प्यारे नबी के दोनों हाथ भी जमीन पर हैं, दोनों घुटनों जमीन पर हैं और प्यारे नबी घुटनों के बल चल रहे हैं, और मैंने देखा प्यारे नबी की कमर पर हुजूर के नवासे हसन और हुसैन सवार हुए हैं, सवार है दोनों नवासे। हाय हाय। हज़रत जाबिर कहते हैं मैंने जब ये मंजर देखा, मेरे नबी की ज़बान पे एक जुमला था, मैं भी अपने नवासों को मुखातब होके कह रहे थे तुम दोनों का ऊंट कितना अच्छा है, तुम दोनों की सवारी कितनी अच्छी है और दोनों कितने अच्छे बोझ हो, तुम तो कितने अच्छे बदन रखते हो। जाने की इस मोहब्बत में कुर्बान जो साथ मोहब्बत करके उम्मत को पैगाम दिया है, मैंने अपने नवासों के साथ इस तरह मोहब्बत करके दिखाई है। और मेरे नबी ने फरमाया है मन अहब्बनी फलयुहिब्बनी, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे इन नवासों से भी मोहब्बत करे।
जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे नवासों से भी मोहब्बत करे। हम तारीख को देखते हैं, एक नवासे को जहर दे के शहीद किया जाता है और एक नबी के नवासे को मैदान करबो बला में प्यासा का शहीद कर दिया जाता है।